ओके, गुड इवनिंग गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिसका नाम है रेप्लिकेशन। इसका नाम क्या है? रेप्लिकेशन। ओके, व्हाट वी मीन बाय रेप्लिकेशन is to form a replica of a strand. It is basically to form exact DNA copy on template strand of DNA, okay, or to form a replica, that is nothing but the mirror image of a DNA. Okay, so the replication process according to the experiment performed by Michelson and Stahl. Okay, the process of replication according to the experiment performed by Michelson and Stahl is semi-conservative. The method of replication is semi-conservative. What we mean by semi-conservative? That if you have two strands of DNA, you can see the double-stranded DNA is there. Double-stranded DNA. So what happens? The strands get separate out. First the strand get separate. Okay, now we can see there is a strand separation takes place, and now there is a formation of a new strand. Meaning that we have one old strand and one new strand. When one old and one new strand is there, okay, if such kind of replication happens, then it is called as a semi-conservative, meaning that half of the DNA has been conserved. Okay, that's why semi-conservative mode of replication. Now, replication happens both in eukaryotes and prokaryotes. Without replication, there is no cell division. Always keep in mind. So, for the replication to happens, we should have a DNA. We should have the DNA. And let's consider, we will talk about the DNA in case of a bacteria. Let's consider this is the DNA of a bacteria. Okay, so if we consider that this is the DNA of the bacteria, okay, this is the DNA of the bacteria, and if you want to replicate this DNA, we shall understand the point from where we want to start the replication. मतलब हमें ये जानना है कि हम किस पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. There should be one point where the replication should be start. Okay, अब ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए. अब मान के चलते कि that we have one point here from where we are starting the replication. उस पॉइंट को हम कहते हैं ओराई सी. क्या कहते हैं उस पॉइंट को? ओराई सी से हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच आर द काइंड ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन. ओके, वी विल टॉक अबाउट दोज एंजाइम फर्स्ट which are involved in replication, and later on continue with the process how the replication happens. Okay, so first the enzymes we require for the replication. Okay, now we require some protein which are known as initiator protein. Number 2, we required the enzyme helicase which unwind the DNA. Number 3, we required RNA polymerase enzyme which synthesize the RNA primer. Okay, number 4, we required DNA
polymerase, okay, and this DNA polymerase will synthesize the DNA, okay, on the template strand. And now number 5, we required topoisomerase, which release the supercoiling, and finally we should have DNA ligase, okay, and this DNA ligase will going to join the strand. So such a 6 enzyme we required for the DNA synthesis, okay. Now we also required the activated nucleotide. For the synthesis of DNA, meaning we have the nucleotide in this kind of stage: AMP, GMP, CMP and TMP. We have to convert them like ATP, GTP, CTP and TTP, okay. When we convert them from AMP to ATP, GMP to GTP, CMP to CTP or TMP to TTP, this meaning that we are activating the nucleotide, and for that purpose we require the adenine triphosphate as a energy, okay. So we required ATP, and we required these 4 nucleotides, and we required this list of enzymes to perform the task of a replication. Now we'll go to the exact process how it happens. Now to perform DNA, we should have a very long strand. From where we will start the replication, okay. So we should have a longer strand first, so that I draw here. Let's consider this one is the strand, or let's make it bit longer so that we can understand the process properly. Okay, now comes to the next point. We have a double stranded DNA here, okay. This is the double stranded DNA, okay, and then the double stranded DNA should be first opened to perform the task of replication. But I told you that where we will going to start the replication, it is the place which place? The place where there is origin of replication. This ORIC is nothing but origin of replication. Now what is important of this particular place? Here in this particular region we have more this kind of base pair, meaning that this is AT rich region. This ORIC is the AT rich region, meaning that we have 80 base pair in maximum quantity at this place. So what that ensure, अगर 80 बेस पेयर ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे डीएनए खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए ORIC पे हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? तो होता क्या है, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रेस डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन है जिनका नाम होता है इनिशिएटर प्रोटीन, जिनका नाम क्या होता है? इनिशिएटर प्रोटीन। नाउ दिस इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड्स एट ओरिजिन of replication and start giving stress on the DNA, and once they start giving stress on the DNA, another enzyme come into action. ये स्ट्रेस देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देते हैं, और तुरंत वहां पे एक नया एंजाइम आ जाता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। जिसका नाम क्या होता है? हेलिकेज, ओके। एंड दिस हेलिकेज एंजाइम नाउ गोइंग टू ब्रेक द hydrogen bond. So helicase with the help of ATP, okay, what it do? It will going to break the hydrogen bond. Let's consider now we have break the hydrogen bond. So once the hydrogen bond break, you find that somewhere there is a double stranded DNA and somewhere there is a
a single stranded DNA. Okay, now here we have helicase attached to the single strand of DNA, and here too we have the helicase attached to the single strand of DNA, meaning that at both the place we have the helicase attached, and the strand has been, the double stranded DNA here is become single stranded. Now this double stranded DNA may come close to form double stranded structure further. हो सकता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर से पास आ जाए और फिर से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना ले, ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पे और एक अलग टाइप के प्रोटीन बाइंड होते हैं। इनिशिएटर प्रोटीन ने तो अपना काम कर दिया, वो निकल गए, लेकिन उसके बाद और अलग टाइप के प्रोटीन बाइंड करते हैं, इनको कहते हैं SSBP। क्या कहते हैं इनको? SSBP, नथिंग बट a single stranded binding protein. They are known as a single stranded binding protein. Okay, get it? Simple. And now once this happens, once the single stranded binding protein happens, this two strand will not going to rewind, मतलब ये फिर से जुड़ने वाले नहीं है। ठीक है, now अब हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमें रेप्लिकेशन अभी करना है, क्योंकि हमारे स्ट्रैंड तो सेपरेट हो चुके हैं। अब किस जगह पे रेप्लिकेशन करेंगे? देखो, देयर आर टू प्लेसेस रेप्लिकेशन। यहाँ पे एक जगह है रेप्लिकेशन की, ठीक है, और सेम वैसी ही जगह इस साइड में भी है। तो जिस जगह पे रेप्लिकेशन चलता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। मतलब आपका रेप्लिकेशन ऐसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा, बिकॉज वी हैव अ टू रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, सिंपल। नाउ आई एम नाउ गोइंग टू कंसिडर only, let's consider, we will consider only this much of portion. We will consider this much of portion. Okay, so let's now understand that we have considered this much of portion, so I draw that much of portion. Okay, so this is the portion I have drawn, and let's consider we have to replicate this much of double stranded DNA. Okay, now we have two strands separated. Okay, two strand binding with the SSBP. I'll give the number, okay, and just refer the end 1 2 3 4. So let's consider that I am writing here a 5' phosphate. Okay, and here is a 3' OH, here is a 5' phosphate, then here is a 3' OH. Now we know that why we are writing 5' phosphate and 3' OH, because at one end there is a 3' OH free group and at other end we have a 5' phosphate free group. That's why. Okay, now comes to the next point. We know that the helicase already attached here, and it is going to unwind the strand as much as possible. It will unwind the strand. Okay, now formation of DNA is always anti-parallel. Keep in mind, formation of DNA is always anti-parallel, meaning if one strand is moving like this, okay, then another will be moving like this. So 5' to 3' OH and 3' OH to 5' to 3' OH, and from here 5' to 3' OH. So this is what we call as anti-parallelity. Anti-parallel strand we have to synthesize here. Now, as before synthesis of new strand cannot be, देखो अभी जो न्यू स्ट्रैंड बनने वाला है वो कौन बनाने वाला है? वो ये एंजाइम बनाने वाला है जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? DNA पॉलीमरेज। पर DNA पॉलीमरेज खुद ब खुद DNA बनाना स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए RNA प्राइमर की जरूरत होती है। किसकी? वी रिक्वायर्ड द RNA प्राइमर, जो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। कितने? 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है RNA प्राइमेज। जिसका नाम क्या होता है? RNA प्राइमेज। इट इज द टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज। ये क्या करता है? इस प्रकार से पहले एक प्राइमर बनाता है, RNA प्राइमर बनाता है, मतलब RNA से बना हुआ, AUGC से बना हुआ एक प्राइमर यहाँ पे ऐड करता है। कैसे डायरेक्शन में ऐड किया? 5' टू फॉस्फेट टू 3' टू OH, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइमर डाल दिया। हाँ, अब प्राइमर डालने के बाद RNA प्राइमर्स के द्वारा हम DNA पॉलीमरेज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे नया DNA बनाने के लिए। ठीक है,
अब क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है, पहले कौन आया, प्राइमर आया, फिर इसने यहाँ पे इधर तक प्राइमर बनाया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है और इधर तक समझ के चलो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है। लेकिन फिर दूसरा भी तो स्ट्रैंड है, तो दूसरे स्ट्रैंड में अगर मैं बोलूँ कि मैं इस प्रकार से आरएनए प्राइमर डालूंगा तो मेरा 5 प्राइम फॉस्फेट इधर आएगा, 3 प्राइम OH इधर आएगा, बट फॉस्फेट नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टे डायरेक्शन में प्राइमर डालना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे। तो इधर आएगा उसका 5 प्राइम फॉस्फेट, यहाँ पे आ जाएगा उसका 3 प्राइम OH। ओके, और जैसे ही प्राइमर डाला फिर से क्या होगा, द डीएनए पॉलीमरेज विल इलोंगेट द स्ट्रैंड। ओके, अब क्या होगा, फिर से ये हेलिकेज उसको ब्रेक करेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो फिर से क्या होगा, व्हाट विल हैपन लेटर, फिर से इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। आपने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से ब्रेक कर रहा है। ओके, ऐसे कुछ वो ब्रेक करेगा। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा खुल गया स्टैंड आपका, यहाँ पे आपका हेलिकेज था। ओके, यहाँ पे आपने एक प्राइमर बनाया था, ये था आपका 5 प्राइम फॉस्फेट, यहाँ पे था 3 प्राइम OH, ये था प्राइमर 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH। ओके, और ये वाला स्ट्रैंड कंटिन्यूली इलोंगेट होते जा रहा था। ठीक है, और हमने एक प्राइमर इधर डाला था, तो इसका जो स्ट्रैंड था इधर क्या था उसका 5 प्राइम फॉस्फेट, तो यहाँ से जो हमने स्ट्रैंड डाला था इस प्रकार से जुड़ गया और इधर आ गया 3 प्राइम OH, ये था 5 प्राइम फॉस्फेट, ये था 3 प्राइम OH, हमने इसी को इलोंगेट करके इधर तक डीएनए बना लिया। अब फिर से हेलिकेज ने स्टैंड को ओपन कर दिया। अब क्या होगा, इस स्टैंड पे प्राइमर डालने की जरूरत नहीं। अब जिस स्टैंड पे आप नया स्टैंड बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे अपन, टेम्पलेट स्टैंड। ये जिस जो एग्जिस्टिंग स्टैंड है इसको टेम्पलेट बोलना, उधर भी एक टेम्पलेट है इधर भी एक टेम्पलेट है, और उसके ऊपर जो नया बन रहा है, ये वाला जो नया स्टैंड बन रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन, लीडिंग स्टैंड। ओके, और ये वाला जो नया बन रहा है उसको कहेंगे लैगिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड। अब फिर से क्या होगा, इस जगह पे प्राइमर डाल दिया जाएगा उल्टी डायरेक्शन में, वही 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH, और यहाँ से लेके यहाँ तक नया डीएनए बना दिया जाएगा। ठीक है, अब उस स्टैंड को बनाने के लिए आपको बार बार प्राइमर लगे, 1 2, ठीक है, इसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही प्राइमर लगेगा। अब ये हो गया डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। अब डायग्राम नंबर 3 में इधर निकालता हूँ। ठीक है, इस साइड में मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, आपने वो सीक्वेंस याद रखना कि किस प्रकार से एंजाइम वहां पे आए थे। ओके, अब डायग्राम नंबर 3 निकालता हूँ। अब जब डायग्राम नंबर 3 निकालता हूँ तो आपका जो रेप्लिकेशन है वो इधर तक पहुंच गया है, इधर तक पहुंच गया आपका रेप्लिकेशन। ओके, हालांकि डायग्राम आपको जो बुक पे दी है वही निकालनी है, कुछ दूसरा नहीं निकालना है। यहाँ पे 3 प्राइम OH था, इधर 5 प्राइम फॉस्फेट था, फिर यहाँ पे अपन ने एक प्राइमर डाला था। ठीक है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे प्राइमर डाले थे, वी रिक्वायर्ड मेनी प्राइमर। ओके, फिर यहाँ से एक स्टैंड जो था वो सीधा सीधा बनते गया। ये जो सीधा सीधा बन रहा है उसको अपन ने क्या कहा, लीडिंग स्टैंड, क्योंकि वो कंटिन्यूस बन रहा था। और ये जो बन रहा था दैट वाज इन द फ्रैगमेंटेड फॉर्म, स्लो बन रहा था। कैसे बन रहा था, स्लो बन रहा था। ठीक है, और फिर एक टाइम आया कि जो डीएनए था वो खत्म हो गया। ओके, डीएनए जो था वो खत्म हो गया, बना के खत्म हो गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है, ये बना आपका लैगिंग स्टैंड, ये था टेम्पलेट, ये भी था आपका टेम्पलेट। ओके, अब हमें क्या दिख रहा है कि 2 स्टैंड तो बने, लेकिन इसमें भी आरएनए दिख रहा है, रेड कलर में जो है वो आरएनए है, यहाँ पे भी बहुत सारे आरएनए दिख रहे हैं।
मैं नहीं चाहता आरएनए हो डीएनए में, मैं चाहता हूँ होमोजीनियस डीएनए रहे। कैसे रहे? वी रिक्वायर्ड होमोजीनियस डीएनए, वी रिक्वायर्ड होमोजीनियस डीएनए। अब अगर आपको होमोजीनियस डीएनए चाहिए तो आपको आरएनए को निकालना पड़ेगा, आरएनए को निकालना पड़ेगा। अभी मैं इधर दिखा रहा हूँ वो कैसे निकालते, ठीक है? ये डायग्राम नंबर 3, ठीक है? मैं इस साइड में आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अभी हमको उसको निकाल के फेंकना है। आरएनए को निकालना जरूरी है, तभी आप होमोजीनियस डीएनए बना सकते हैं, ठीक है? अब एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आरएनएस, मतलब होता है राइबो न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है उसका? राइबो न्यूक्लियस। तो राइबो न्यूक्लियस क्या करेगा? व्हाट इट विल डू? इट विल रिमूव ऑल द प्राइमर। ये जो प्राइमर है उसको निकाल देगा, सभी प्राइमर को निकाल देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर देखिए आपका जो स्टैंड है वो किस प्रकार से नजर आएगा। अब मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, ये पूरा स्ट्रेट कर दिया मैंने, ठीक है? क्योंकि आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपने प्राइमर निकाल दिए। एज यू रिमूव द प्राइमर यू विल फाइंड दैट यहाँ पे बचा है सिर्फ आपका एक ये लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? और क्योंकि आपने प्राइमर निकाल दिए तो सिर्फ आपके क्या बचे? यहाँ पे फ्रैगमेंट्स बचे। क्या बचे हैं? डीएनए के फ्रैगमेंट्स बचे हैं, ठीक है? अब ये तो आपका हो गया लीडिंग, ये हो गया आपके लैगिंग। बट अभी मैं इसको कंटिन्यूली लैगिंग स्ट्रैंड क्यों नहीं बोलूंगा? देखो, आरएनए निकालने के बाद ये जो फ्रैगमेंट बचे इनको क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं इनको? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। दे कैन कॉल्ड एज अ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ओके? अब आपके पास ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बने, आपके आरएनएज ने पूरे प्राइमर्स को हटा दिया। देख रहे हैं ये रेड वाले प्राइमर्स हट गए, तो वहां पे गैप बन गई। देखिए ये गैप बन गई, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट तो बने लेकिन गैप बन गई। अब इस गैप को फिल करना पड़ेगा। अब क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज? ये गैप को फिल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये क्या कर रहा है? गैप फिलिंग कर रहा है, ठीक है? गैप फिलिंग कर रहा है। फिर धीरे धीरे ये एक एक स्ट्रैंड को यहाँ पे जोड़ते जाता है, ठीक है? अब ये बराबर एंटी पैरेलल लिखा, यहाँ पे भी वो डीएनए स्ट्रैंड जोड़ता है, ये जुड़ रहा है, अभी डीएनए बन रहा है ना? अब उसने क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। डीएनए पॉलीमरेज ने जहाँ जहाँ गैप थी वहाँ पे डीएनए बना दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका आ गया 3' OH 5' फॉस्फेट, ओके? अब आपको मिल चुके हैं होमोजीनियस डीएनए। पहले कौन बना? लीडिंग स्ट्रैंड बना। बाद में कौन सा बना? लैगिंग स्ट्रैंड बना। लैगिंग स्ट्रैंड स्लो बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड थोड़ा सा फास्ट बनता है। इस प्रकार से हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला जो स्ट्रैंड होता है, यहाँ पे जो लास्ट एक मैंने बोला था, यहाँ पे एक छोटा सा निक गैप बच जाता है। गैप नहीं बोलूंगा उसको, निक बच जाती है। क्या बच जाती है? निक। निक मतलब ये वाला जो पहले डीएनए फ्रैगमेंट जोड़ा था और उसके बाद का जो डीएनए फ्रैगमेंट बनाया उसमें एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा रहता है। टूटा हुआ फॉस्फोडाइस्टर का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब होता है निक, ओके? और इस निक को रीसील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रीसील कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इस एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए लाइगेज के द्वारा। इस प्रकार से एक ओल्ड स्ट्रैंड था और हर ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन गया। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कॉन्जर्वेटिव था। अब ये हुआ डायग्राम नंबर 4, ओके? अब क्या होता है कि जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है, हेलिकेज खींचते जाता है। हेलिकेज ने क्या काम किया यहाँ पे? सिर्फ डीएनए को खींचते गए। लेकिन जैसे जैसे खींचेगा तो आगे का जो डीएनए होता है वो सुपर कॉइल्ड होते जाता है, सुपर कॉइल्ड होते जाता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है उसका काम है टू रिमूव सुपर कॉइलिंग। जब डीएनए ऐसा था, जब डीएनए ऐसा था, ठीक है? डीएनए जब ऐसा था तो यहाँ पे कौन था? अटैच
हेलिकेज अटैच था और इसने क्या किया, फिर से खींचा, खींचने के बाद क्या हुआ, फिर से अनवाइंडिंग किया। अब अनवाइंडिंग तो कर लिया, लेकिन डीएनए को कैसा कर दिया, एकदम ज्यादा कॉइल्ड कर दिया। जैसे ना अगर आपने धागा खींचे तो कैसा वो एकदम से अलग तरीके से बाइंड हो जाता है ना, तो वो एकदम टेंशन आ गया ना। तो अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए कॉज सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए अहेड। देखो पहले वाला तो डीएनए हमने खोल दिया, लेकिन जो बाद वाला डीएनए था, बाद वाला है ना डीएनए विच वाज अहेड, वो क्या हो गया, सुपर कॉइल्ड हो गया। अब ये इतना सुपर कॉइल्ड डीएनए जो है, इसको आपको इस सुपर कॉइलिंग को खोलना पड़ेगा, तो आप रेप्लिकेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे, है ना, बरोबर। तो ये सुपर कॉइलिंग को खोलने के लिए क्या होता है, टोपो आइसोमरेज आता है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, ऐसे कट लगाता है। देखो ये दो स्ट्रैंड को उसने क्या कर दिया, कट लगा दी। जो दो स्ट्रैंड को कट लगा दी बीच में से, तो क्या हो गया, वो ऐसे 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 करके खुल गए स्ट्रैंड। और खुलने के कारण क्या हुआ, आपका डीएनए फिर से क्या हो गया, ऐसा रिलैक्स हो गया। अब इसके ऊपर आप फिर से नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। तो डीएनए रिलैक्सेशन कौन कर रहा है, डीएनए रिलैक्सेशन कौन कर रहा है, डन बाय टोपो आइसोमरेज, और इसको एक दूसरा नाम है डीएनए गायरेज। और क्या नाम है इसका, डीएनए गायरेज। इस प्रकार से जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है ना, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो आपको एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड मिलते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रैंड था डीएनए का, उसको हमने पहले क्या किया, सेपरेट किया। देखो आपको यहाँ पे सेपरेशन मिला। तो ये जो थे वो ओल्ड स्ट्रैंड थे, या फिर इनको पेरेंटल स्ट्रैंड कहेंगे। ये भी कैसा था, ओल्ड कहता है, या फिर कैसा था, पेरेंटल था। और हर स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन गया, हर स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो ये जो नया स्ट्रैंड था इसको कहेंगे डॉटर डीएनए या फिर न्यू स्ट्रैंड। ओके, तो इसीलिए रेप्लिकेशन कैसा है आपका, सेमी कॉन्जर्वेटिव। ओके, इस प्रकार से आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। सिंपल। थैंक यू सो मच।